Okay, so let's start. But before starting the session, let me tell you, tomorrow you will have weekly mock test on unit number 7, that is data structure, and unit number 10, that is artificial intelligence. तो ये आपका कल मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है. एंड फॉर द नेक्स्ट वीक, मतलब आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एआई का कल मॉक टेस्ट हो जाएगा. देन बी रेडी विद द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फॉर द नेक्स्ट संडे. करेक्ट. तो नेक्स्ट संडे तक आप अपना कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए, so that you can appear in this mock test. Now, most repeated MCQ series, it is a daily practice series and will be continue until your examination. So it is exam oriented series, and every Monday, Wednesday and Friday I am conducting the session at 11 a.m. It is beneficial for net set and assistant प्रोफेसर एग्जामिनेशन. और यदि आप चाहें तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इस पीडीएफ को विद द एमएस सेट एंड एपी सेट एग्जामिनेशन. द क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड. ठीक है. नाउ वी हैव ऑल्सो complete course that you can join and can prepare for the June 2023 examination. So it is completely recorded course that is available in 1909 rupees in for the 3 month subscription for the 3 months. Correct. So yes, here you will get theory session, practice session, net previous year, gate previous year, and rank booster mock test series with the validity of 3 months for rupees 1999 rupees. And yes, your rank booster mock test series also started, so you can join this one. Here you will get 10 full subject wise mock test, 10 full length mock test, latest pattern questions are there. And uh, alternative days पर आपके mock test schedule है, but still you can register and can solve or can participate in the previous mock test as well. So all 10 units plus 10 full length mock test will be there. Join my Telegram channel to get the notification of classes, daily PDF, and updates about the examination. And you can also download my app Rashmi at the rate JRF Guru from the Play Store. And this is the series that you can refer for your preparation, where you will get subject wise previous year question from 2023 to 2018. 7 year previous year questions are available here. Correct. So yes, chaliye. Any query or doubt? मैम वो सेम डे पर कंडक्ट होते हैं मॉक टेस्ट. सेम डे पर 24 आवर्स के अंदर में आपको सॉल्व करना होता है. चलिए, here is the next question that we have to solve. For the grammar below, what you can do ना मैम, आप है ना ऐप ओपन करिएगा. ठीक है, ऐप ओपन करिएगा. ऐप में आप राइट यहाँ टॉप लेफ्ट साइड में इस तरीके का आपको 3 डॉट्स मिलेगा. ठीक है, जब आप ऐप ओपन करेंगे तो इस तरीके से 3 डॉट मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा. तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मेन्यू में मिलेगा फ्री मटेरियल. ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल, या इस तरीके से एक टैब है फ्री मटेरियल का. उसको जब आप ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर 3 टैब मिलेंगे. एक तो आपको मिलेगा वीडियोस का, ठीक है, जहाँ फ्री वीडियो है. दूसरा डॉक्यूमेंट, जहाँ मेरे फ्री पीडीएफ है. और तीसरा है टेस्ट का. तो वहां पर जाकर आप टेस्ट में अपियर हो सकते हैं. यदि आपको चाहिए तो आप यहाँ से भी टेस्ट में अपियर हो सकते हैं. ठीक है. तो ये भी अप्रोच है जिसको आप फॉलो कर सकते हो टू अपियर इन द टेस्ट जो प्रीवियसली कंडक्ट हो चुके हैं. यस, सॉल्व करिए.
यस, ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Here we have to do the calculation of first and follow. This is the question from compiler design. Okay, compiler design से आपका क्वेश्चन है. तो देखिए आपको ग्रामर गिवन है. द हेयर वी हैव पार्शियल LL1 पासिंग टेबल इज गिवन, तो आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है. एंड प्रेजेंटेड अलोंग विद द ग्रामर. Entries that needed to be filled are indicated as E1, E2, E3, and epsilon is the empty string. Dollar indicate end of the input, and bar indicates separate alternative right hand side of production. ठीक है, this is the grammar. So the first and the follow set of non-terminal A and B are first and follow set, है ना. तो first of एंड फॉलो सेट ऑफ ए और बी आपको कैलकुलेट करना है. सबसे पहले यदि आप फर्स्ट ऑफ ए देखें, तो फर्स्ट ऑफ ए में आप क्या देखेंगे? हियर यू हैव एस, तो इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एस. नाउ फर्स्ट ऑफ एस क्या है? फर्स्ट ऑफ एस इज ए, स्मॉल ए आपको मिल जाएगा, ठीक है, इट इज ए. फ्रॉम हियर आई हैव एप्सिलॉन, आई हैव बी, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा बी. नाउ एप्सिलॉन इज देयर, ठीक है, एप्सिलॉन इज देयर. So this is what first of A, ठीक है, ये क्या बना? First of A, that is equal to first of S, because A can be rewritten as S, ठीक है, A can be rewritten as S. अच्छा, अब देखिए यदि मैं बात करूं, ठीक है, यदि मैं बात करूं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ बी की, तो फर्स्ट ऑफ बी अगेन यदि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ बी कैन बी रीरिटन एज एस, तो फर्स्ट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा? अगेन फर्स्ट ऑफ एस. फर्स्ट ऑफ एस अभी आपने कैलकुलेट किया, इट इज ए बी ई एप्सिलॉन, ए बी एंड एप्सिलॉन. डन. तो ये आपका बना फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ एस एंड फर्स्ट ऑफ बी, तीनों इक्वल है. अब आपसे पूछा जा रहा है फॉलो ऑफ, फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए. सो फॉलो ऑफ ए इज, देखिए फॉलो ऑफ ए, ए इसमें लास्ट है, ठीक है, फॉलो ऑफ ए एस में आ रहा है, इस प्रोडक्शन में आ रहा है, और उसको फॉलो कौन कर रहा है? स्मॉल बी. तो फॉलो ऑफ ए इज बी एंड ए को फॉलो कर रहा है स्मॉल ए. सो इट इज फॉलो ऑफ ए इज ए बी या बी ए, बात एक ही है, ठीक है, ए बी. नाउ व्हाट इज फॉलो ऑफ बी? फॉलो ऑफ बी, तो फॉलो ऑफ बी लाइक यू कैन सी इन बोथ प्रोडक्शन, ये है लास्ट सिंबल. बोथ प्रोडक्शन इट इज द लास्ट सिंबल. सो फॉलो ऑफ बी शुड बी फॉलो ऑफ एस. फॉलो ऑफ बी क्या बनेगा? फॉलो ऑफ एस होगा. फॉलो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे, फॉलो ऑफ एस मतलब बी का लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है? एस. तो फॉलो ऑफ एस. नाउ व्हाट इज फॉलो ऑफ एस? एस इज अ स्टार्टिंग सिंबल, तो बाय डिफॉल्ट डॉलर इज द फॉलो ऑफ एस, ठीक है, डॉलर भी फॉलो ऑफ एस होगा. नाउ सी, अब इन दो प्रोडक्शन में आपने एस का यूज किया है, तो व्हाट इज द फॉलो ऑफ एस? तो फ्रॉम हेयर देखिए बाय डिफॉल्ट तो डॉलर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एस इज अ स्टार्टिंग सिंबल, एस इज अ स्टार्टिंग सिंबल. नाउ एस के बाद कोई सिंबल है क्या? नहीं है. in this production a can be rewritten as, a can be rewritten as s. there is nothing as follow of s. तो मैं क्या चेक करूंगी? follow of a, ठीक है, मैं क्या चेक करूंगी? follow of a. अभी आपने देखा follow of a क्या है? a and b, तो ये आपको मिल गया. now from this production again s यदि आप देख रहे हैं, तो इट इज व्हाट? बी. फॉलो ऑफ बी, तो ऑलरेडी मैं जो कैलकुलेशन कर रही हूँ मैं फॉलो ऑफ बी का ही कर रही हूँ, दैट इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एस, दैट विल बी इक्वल टू डॉलर ए एंड बी, है ना. तो आपका आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर. ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है. बाकी आप यदि आपसे फॉलो कैलकुलेशन या फर्स्ट कैलकुलेशन बनता है, तो आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना. यहाँ पर आप डायरेक्टली एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं. लाइक सेकेंड ऑप्शन आपका फर्स्ट में ही कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट का कैलकुलेशन आपने किया, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसिल्ड. अब आपके पास सिर्फ ए और सी में आपको डिसाइड करना है. देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर है,
तो बचा आप सिर्फ फॉलो अप भी कैलकुलेट कर लो, है ना। सिर्फ फॉलो अप भी, इन्होंने फाइव दिया है, एक्चुअली फॉलो अप भी क्या आ रहा है, ए बी एंड डॉलर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और है। हाँ, इसी मतलब ये आपका गेट का क्वेश्चन था, तो इसमें दो क्वेश्चन दिए थे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि द एप्रोप्रिएट एंट्री फॉर E1 E2 एंड E3 बताइए। चलिए आप ट्राई करिए, देन आई विल एक्सप्लेन। हाँ जी। अमन सर, एक पीडीएफ है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप देख लीजिए, नहीं तो मैं इसको रीशेयर कर देती हूँ, है ना। हर यूनिट से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक।
अरे भाई कहाँ चला गया हमारा, सॉरी। तो ये डन है आप लोगों का क्वेश्चन? अच्छा ठीक है। तो हाँ, आई होप आपको पता है ये सारे वीडियो आप बाद में भी एक्सेस कर सकते हो और इसका पीडीएफ कंटेंट सेक्शन में अवेलेबल है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट दीज एंट्री, है ना। ये एंट्री कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन, एस कैन बी रिटन एज ए बी बी, है ना। एंड देन बी ए, या इस तरीके से लिखूं ज्यादा अच्छा रहेगा, बी ए बी एंड एप्सिलॉन। ये तीन पॉसिबल एंट्री है आपकी, किसके लिए? एस सिंबल के लिए, है ना, एस के लिए। सो नाउ सी, I will calculate for this table, है ना, for this table LL1 टेबल हम क्या कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट ऑफ एस एंड ऑल दीज एंट्री विल बी अंडर द फर्स्ट ऑफ एस। तो फर्स्ट ऑफ एस ए बी और एप्सिलॉन है, तो ए बी और एप्सिलॉन। तो देखिए पहला जो प्रोडक्शन है दैट इज ए कैन बी रीरिटन एज, एस कैन बी रीरिटन एज ए बी, इट विल बी अंडर ए क्योंकि इसका फर्स्ट ऑफ क्या है? ए है। तो E1 की एंट्री क्या बनेगी? E1 की एंट्री बन जाएगी ए बी बी। ठीक है, अभी आपने इतना लिख दिया, ये E1 की एंट्री है। इसी तरीके से फॉर E2 एंट्री क्या होगी? फर्स्ट ऑफ एस अंडर बी, बी के अंडर आपका ये आ जाएगा, दैट इज बी ए बी। नाउ वी हैव द थर्ड प्रोडक्शन दैट इज एस ऑफ एप्सिलॉन। देखिए जब भी राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन है, सो दैट एंट्री शुड बी, that entry should be placed under first of left hand side। इसको आपको फर्स्ट ऑफ एस में, जो भी फर्स्ट ऑफ एस का जो भी वैल्यू है दैट इज ए बी एंड एप्सिलॉन, हर जगह डालना होगा। मतलब E1 के अंडर में भी आप लिखोगे एस कैन बी रीरिटन एज एप्सिलॉन, E2 भी एस कैन बी रीरिटन एज एप्सिलॉन, एंड डॉलर एंट्री विल आल्सो बिकम एस कैन बी रीरिटन एज एप्सिलॉन। तो मतलब अंडर एवरी एंट्री यू विल हैव राइट डाउन दिस। ठीक है, तो ये डॉलर के अंडर में तो जाएगी ही, साथ में ए और बी पर भी जाएगा इसका एंट्री। ठीक है, तो ये आपका बन गया एंट्री फॉर E1 एंड E2। ठीक है, एंट्री फॉर E1 एंड E2। नाउ द थर्ड एंट्री दैट इज दिस वन। तो अब देखिए बी का प्रोडक्शन क्या है? बी का प्रोडक्शन तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्शन है, दैट इज बी कैन बी रीरिटन एज एस। तो मतलब बी की एंट्री, इसका इसकी एंट्री कहाँ जाना चाहिए? बी कैन बी रीरिटन एज एस, दिस एंट्री शुड बी प्लेस्ड अंडर द फर्स्ट ऑफ एस, अंडर द फर्स्ट ऑफ एस। अगेन फर्स्ट ऑफ एस क्या है? ए बी एंड, ठीक है, ए बी एंड एप्सिलॉन। सो अगेन वही बात हुआ कि आप ए के अंडर में भी डालोगे, बी के अंडर में भी और डॉलर के अंडर में भी। सो अगेन बी कैन बी रीरिटन एज एस विल बी द एंट्री फॉर E3, है ना। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए, तो एवरीवन जो भी नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, दिस इज द यूनिट वाइज। ठीक है, यू कैन सी कि यूनिट वाइज ये प्रिडिक्शन है और हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारा कुछ मेंशन किया है मैंने। ठीक है, वो टॉपिक भी मेंशन किए हैं जहां से आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पॉसिबल है। तो यस, यदि आप कुछ यूनिट जिनका आप सिर्फ ओवरव्यू रखना चाहते हो, डेफिनेटली आप इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए, इट विल हेल्प यू, है ना। तो ये सारा पूरा यूनिट वाइज आपको मैं शेयर कर देती हूँ एक बार फिर से। सो फॉर एवरी यूनिट इट इज, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हर एक यूनिट के लिए दिया हुआ है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
हाँ जी, डन। हाँ, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो ये रहा आपका लीडर बोर्ड, सभी आंसर नहीं कर रहे हैं आई थिंक, है ना? तो यस, सी, यहाँ इन्होंने दिया है कंप्यूटर हैज द टोटल 256 के बाइट फोर वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, ये मतलब आप लोगों को जो मेमोरी टैगिंग दी गई है वो क्या है, फोर वे सेट एसोसिएटिव। सो हियर यू विल हैव ब्लॉक ऑफसेट। ठीक है, पहली चीज आप क्या देखते हैं, सेट एसोसिएटिव। इस डायग्राम को याद रखिए, ब्लॉक ऑफसेट, देन सेट नंबर एंड देन द टैग बिट्स। ठीक है, तब आपका क्या आता है, टैग बिट्स। तो अब देखिए एक एक कैलकुलेशन करते चलेंगे। कंप्यूटर हैज टोटल मेमोरी, ठीक है, 256 के बाइट फोर वे सेट एसोसिएटिव राइट बैक डेटा कैशे विद द ब्लॉक साइज इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ बोला गया है कि टोटल जो आपकी साइज है ना, वो कितनी है, 256 के बी है, एंड जो ब्लॉक का साइज है वो 32 बाइट है। सो इट विल गिव यू द नंबर ऑफ एंट्री। यदि मैं टोटल साइज को डिवाइड कर दूं विद अ सिंगल डेटा ब्लॉक, इट विल गिव यू द नंबर ऑफ एंट्री। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एंट्री। नाउ अब ये क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेसर सेंड द 32 बिट एड्रेस टू द कैशे कंट्रोलर। मतलब ये टोटल एड्रेस कितने साइज का है, 32 बिट्स का है। ईच कैशे डायरेक्टरी, each cache directory has entry contain, in addition to the tag, two bits, two valid bits, one modified bit and one replacement bit. So number of tag bits we have to find out. ठीक है, तो स्टेप वन क्या होता था कि हम यहाँ फाइंड आउट करते थे ब्लॉक ऑफसेट क्या होगा। ब्लॉक ऑफसेट के लिए यू शुड नो द साइज ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक साइज यहाँ गिवन है क्या, हाँ जी, ब्लॉक साइज गिवन है। ब्लॉक साइज है 32 बाइट। नाउ फॉर 32 बाइट्स हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड। सो 32 बाइट्स के लिए हम लिख सकते हैं 2 पावर 5, है ना। सो इट विल बिकम 5 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक ऑफसेट। ठीक है, 5 bits are required for block offset. Now second entry we have to find out for the set. तो मुझे पता होना चाहिए कि इस सिस्टम में कितने सेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो अब हमको सेकंड क्या एंट्री फाइंड आउट करनी है, द नंबर ऑफ सेट्स। द नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स कैसे पता चलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो नंबर ऑफ लाइंस इन कैशे। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ लाइन इन कैशे कितना है। तो नंबर ऑफ लाइन कैशे कैसे निकालोगे, टोटल साइज ऑफ कैशे, टोटल साइज ऑफ कैशे दैट इज 256 डिवाइडेड बाय अ सिंगल ब्लॉक साइज, सिंगल ब्लॉक साइज, ठीक है, दैट इज 32 बाइट। तो इसको आप डिवाइड, इसको लिख लीजिए 2 पावर 8 इंटू 2 पावर 10, है ना, ये क्या हो जाएगा 256 इंटू 2 पावर 10 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 32, 32, 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5। सो इट विल गिव यू, ठीक है, 2 पावर 13। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 2 पावर 13, या इसको लिख सकते हो आप कितना, 13 ही रहने दीजिए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2 पावर 13। ठीक है, ये आपको क्या मिल गई, नंबर ऑफ लाइन्स 2 पावर 8 इंटू 2 पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5। ये क्या दे देगा, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पावर 13 आर द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। बट मुझे कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ सेट। तो नंबर ऑफ सेट का फॉर्मूला क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, number of lines divided by number of lines in single set, in a set। अब सेट फोर वे एसोसिएटिव है, इसका मीनिंग यह है कि सिंगल सेट में कितनी लाइन है, 4 लाइन्स है। तो 2 पावर 13 शुड बी डिवाइडेड बाय 2 पावर 2, दैट विल गिव यू 2 पावर 11। सो नंबर ऑफ सेट्स आर 11। सो मतलब here we will require 11 bits for the sets. Now how many tag bits, 32 minus 11 minus 5, it will give you 16 bits are required for the tag bits, 16 bits are required for the tag। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, 13 bits are required for the tag। this line is just for the confusion, है ना, ये सब इन्होंने सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है, बाकी रेस्ट हमको टैग बिट्स ही कैलकुलेट करना है।
यस, तो वीकली मॉक टेस्ट में कल आपका मॉक टेस्ट है डेटा स्ट्रक्चर एंड एआई. इट इज फ्री मॉक टेस्ट, तो बी रेडी विद दिस. एंड दिस सीरीज you can download the pdf of most repeated mcqs, and you can also watch the recording by accessing the same course. तो आपने करना क्या है, open the app and go to store. In that store, open the course that is practice session on computer science most repeated mcq. इस कोर्स को ओपन करेंगे. विजिट द कंटेंट सेक्शन. ठीक है, कंटेंट सेक्शन को विजिट करिएगा. देयर यू विल गेट द फ्री कंटेंट. वहां आपको पूरा फ्री कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा. नाउ दिस इज द कंप्लीट कोर्स दैट यू कैन ज्वाइन फॉर द नेक्स्ट 3 months इन जस्ट रुपीज 1999. So mock rank booster mock test series is also included here. Net previous year, gate previous year from 2023 to 2018. It is included in this course. ठीक है. Yes, we have started the rank booster series, but still you can join because सिर्फ एक या दो ही mock test हुए हैं. So still you can join, and even you can also attempt these mock test uh, up to next 6 months, because validity of this mock test series is 6 month. ठीक है, तो आप नेक्स्ट 6 मंथ तक इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं. टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फॉर द पीडीएफ एंड नोटिफिकेशन. रश्मि जेआरएफ गुरु. ठीक है, रश्मि जेआरएफ गुरु ऐप आपने डाउनलोड कर लिया है. यू कैन ऑल्सो एक्सेस दिस प्ले लिस्ट on my YouTube channel to watch unit wise practice series from 2023 to 2017. ठीक है, 18 2018. तो यस, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है ऑन माय यूट्यूब चैनल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा.
यस, वेरी गुड। देखिए, यहाँ यदि मैं बात करूँ, वी हैव एनी बाइनरी ऑपरेशन एंड दिस इज द operation how we perform. So x operator y will give you x square y, whether this is commutative or not. ठीक है, तो commutative तो होगा ही, because it is over the set of integer. तो यदि आप क्या करो, 2 operator 3 apply करो, so you will get 2 square plus 3 square, that will give you 4 plus 9. ठीक है, ये आपको मिलेगा. Similarly, if you will perform 3 operator 2, so you will get the same thing, 2 square 3 sorry 3 square plus 2 square, so the same result will be there, 9 plus 4, है ना. So yes, it is commutative. Commutative तो है, but क्या ये associative भी है? ठीक है, क्या ये associative भी है? तो what I can do, either I can put the number और मैं directly भी solve कर सकती हूँ. Associativity का rule क्या कहता है? If A is A operator B operator C, it should be equal to A operator B operator C, है ना, B operator C. So if यदि आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो A ऑपरेटर B मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, है ना, प्लस नॉट प्लस, इट इज ऑपरेटर सी. सो जब आपने यहाँ ऑपरेटर लगाया, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस विल बी द फर्स्ट ऑपरेंड एंड दिस इज द सेकेंड ऑपरेंड, होल स्क्वायर प्लस प्लस सी स्क्वायर, ये आपको आंसर मिलेगा. वाइल यदि आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जाते, तो पहले आप इसको सॉल्व करिए. ए ऑपरेटर, इट इज, it will become b square plus c square. Now ab, this is the first operand, this is the second operand, so it will become a square plus b square plus c square whole square. And you can see left hand side is not equal to right hand side, so we will say कि इट इज कॉम्यूटेटिव, इट इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव. ये कॉम्यूटेटिव तो है पर एसोसिएटिव नहीं है. ठीक है, इट इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव. ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन. पॉइजन थ्योरम अप्लाई करना है. लास्ट ईयर आया था पॉइजन थ्योरम पर एक क्वेश्चन. You can see in the window approximately 547 is uh, the page number that we are solving here. So all the previous question you can check in the recording of the previous videos. So today is the 15th session of most repeated question, and the previous video you can access from the same course in the content section without paying any amount. Don't pay any amount. Even it will display you 200, but directly go to the content section and you can access this content free of cost.
तो देखिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द पॉइजन थ्योरम या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज p इज द नंबर ऑफ द कार, ठीक है, प्रोबेबिलिटी p इज द नंबर ऑफ कार per minute passing through the certain road between 5 p.m. to 6 p.m. मतलब within 1 hour how many cars are passing, that is represented by the p. Now p has Poisson distribution with the mean value of 3, ठीक है। यदि हम यहाँ पर ए अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो 5 to 6 p.m. के बीच में जो नंबर ऑफ कार पास हो रही है दैट इज 3, within 1 hour the mean value is 3, meaning is that कि in 1 hour up to 3 cars are passing from that particular road. Then what is the probability of observing that fewer than 3, fewer than 3 matlab 0 car has been passed, only 1 car has been passed, only 2 car has been passed between 5 to 6 p.m. This is what we have to find out, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 0 car हैज बीन पास ड्यूरिंग 5 to 6, 1 car has been passed or 2 car has been passed, because they are saying fewer than 3, fewer than 3 during this during any given minute in the interval क्या given है between 5 to 6 p.m. So देखिए, in this question we will apply the Poisson distribution function या Poisson probability function, that is lambda power k. You know it is given by, ठीक है, lambda power k upon e power lambda k factorial. Now what is lambda? Lambda is your mean value, the average case that how many cars are passing with between 5 to 6 p.m. how many cars, the mean value is here lambda, ठीक है। ये आपकी क्या बनती है lambda. Now what is k? K is the probability that we want to calculate 0 car are passing, then 1 car is passing, and then 2 car is passing. So what we will do, we will do the calculation for the 0 car plus the probability for the 1 car, for the 2 car, and this probability will be added, will give the answer that fewer than 3 cars has been passed, ठीक है। 3 कार से कम कार यहाँ पास हुई। तो आपने क्या करना है, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ई इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज रखेंगे। तो अब हमने करना क्या है, वी हैव टू पुट द वैल्यू 0 and 3 in this function, for 0, for 1 and for 2, एंड फिर तीनों का सम कर दीजिए, तो दैट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी। तो सिंपली देखिए ये क्या है, फॉर 0 लैम्डा, lambda is 3, so 3 power 0 divided by e power lambda, that is e power 3 into फैक्टोरियल 0, एक k इक्वल टू 0 का कैलकुलेशन है। ओनली 0 कार हैज बीन पास्ड इन दिस इंटरवल विद द हेल्प ऑफ पॉइजन probability distribution. Then we have for k equal to 1, I can write 3 power 1 divided by e power 3 will be as it is into k factorial, that is 1 factorial, plus now for k equal to 2, k equal to 2, it will become 3 square divided by e power 3 into 2 factorial. So it will give you 3 power 0 means 1 upon e cube, and 0 factorial means 1, plus it will be 3 upon e cube, 1 factorial is also 1, then 9, 3 square is 9 divided by e cube, and 2 factorial is 2, so 2e square. now इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, इनको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2e cube, then it will be 2 plus 6 plus 9, है ना। तो ये आपको क्या दे देगा, it will give you 17 upon 2e cube, that is your answer.
अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है इस पर ही, ऑन पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जहां हमको सिंगल प्रोबेबिलिटी के लिए निकालना पड़ता है। ठीक है, हमको ड्यूरेशन गिवन होता है कि इन 30 मिनट्स हाउ मैनी कार्स आर पासिंग, तो वो एक अलग न्यूमेरिकल है। दिस वन इज डिफरेंट वन। ठीक है, यहाँ आपको निकालना था फ्यूअर देन थ्री, फ्यूअर देन थ्री। Now this is the last question. Next we will continue on Monday. So this series is available on Monday, Wednesday and Friday, and recording of this session will be available by tomorrow and every Friday at 11 a.m. So the smallest integer that can be represented by 8-bit number in 2's complement form. देखिए आप क्या आंसर करते हैं। 2's complement रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। फॉर्मूला याद है ना? हाँ जी, वेरी गुड। तो देखिए आंसर क्या होगा। Here we have 8-bit number and 2's complement representation. What is the largest number? What is the smallest number? So we know that in 2's complement representation, the range of number is given by minus 2 power n minus 1. There n is number of bits. Okay, so it will be minus 2 power 8 minus 1 will give you minus 120, एक बार और कर लेते हैं, -2 power 7 और -128. What is the positive number? Here we can represent the largest positive number is 2 power n minus 1 minus 1. So it is 2 power 8 minus 1 that will give you 128 minus 1, that is 127. For the 5 bits, यदि instead of 8 bits दिया होता, so 2 power 5 minus 1, that is minus 64 is the smallest number that you can represent with the help of 5 bits, and the largest number that you can represent is 2 power and minus 1, not 64, it is 16, and it will be 2 power 2 power 4 minus 1, that is 16 minus 1, that is 15. The largest number we can represent here, positive and the negative number, positive and negative number. तो इस रेंज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद दिस क्वेश्चन। एनी डाउट इन टुडेज सेशन? Any doubt, query? Here is the leaderboard I'm publishing. Any doubt or query? Be ready with the mock test tomorrow at 7 p.m.
ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। आई एम अपलोडिंग इन चैनल as well as and in this course as well, so आप डाउनलोड कर लीजिएगा।